بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹ۔ پاکستان آج کل خبروں کی اماج کا بنا ہوا ہے۔ اس اماج گاہ میں حکومت بات کرے یا اپوزیشن، سرکاری ادارے ہوں یا انٹرنیشنل میڈیا، موضوع بحث عمران خان، بانی عمران خان۔ یہ بانی عمران خان وہ ہے جس نے آج جو کال دی کامیاب ہو گئی۔ اس وقت پاکستان کے ہر شہر میں طول و عرض میں ہر رکاوٹیں توڑ کر شہر لوگ اسلام آباد، پنڈی، لاہور عمران خان کی 24 نمبر کی کال پر باہر نکل آ چکے ہیں۔ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ حکومت نے بغض عمران میں شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ تمام راستے بند، تمام شہر بند، تمام سکول بند، کالج بند، دفاتر بند، ہوٹل بند، یہاں تک کہ حکومت کی بولتی بند ہو گئی اور جھوٹ بولے کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈری ہو۔ یہ حالات ہیں کہ ایک وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کے منسٹر گوہر سے انہوں نے بات کی۔ یار کوئی شرم، کوئی حیا ہوتی ہے بھائی؟ سپریم کورٹ نے تو حکم کیا تھا کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں فوری طور پر دی جائے، آپ نے وہ حکم نہیں مانا۔ سپریم کورٹ نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے درجوں مرتبہ کہا عمران خان کے وکلاء، ان کی اہل خانہ کی ملاقات کرائی جائے، نہیں کرایا۔ اب جب اس نے کال دی کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کی، مینڈیٹ چوری کے خلاف، تو حکومت نے بجائے اس کے کہ ایک دن کا 24 مارچ ہوتا، 24 نومبر ہوتا، اسے مہینوں میں محیط کر دیا۔ اس وقت پیٹرول پمپ سے لے کے درسگاہیں تک اور ہسپتالوں میں جانا تک لوگوں کا مشکل ہو چکا ہے۔ عمران خان نے جو کال دی تھی اس کی کامیابی کے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اب رات کے اندھیرے میں 23 اور 24 کی نومبر کی درمیانی شب عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے، اگر آپ اپنی پرامن احتجاجی تحریک موومنٹ منسوخ کر دیں تو ہم آپ کو بنی گالا بھیج سکتے ہیں اور آپ کے لوگوں کو بھی رہا کر دیتے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کے مطابق یہ انہیں پہلے بھی آفر ہو چکی، لیکن انہیں پتا ہے اس حکومت کا ایک ہی طریقہ کار ہے، جیسے ہی اس پر مشکل وقت آتا ہے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے تو آئی نہیں، ایک سازش کے تحت آئی، سائفر کے نتیجے میں، تو یہ عمران خان کے اور عوام کے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ جیسے ہی مشکل وقت نکلتا ہے، عمران خان احتجاج مہر کرتا ہے، تو یہ پھر انہی کے لوگوں کو گریبان پکڑتی ہے۔ ہزارہا لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کے پاس حکومت نے پیغام بھیجا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے پہلے بھی تحریک کو نقصان پہنچایا تھا پچھلے ماہ۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو اب مذاکرات کے اختیارات ہی نہیں ہیں، اور یہ اختیارات صرف اور صرف اور صرف اڈیالہ جیل میں بند ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا حل صرف ایک شخص ہے، عمران خان، جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، جس پر تمام مقدمات عدت کیس ہو، صفر ختم، سائفر ہو ختم، توشہ خانہ ہو صفر، اب سیاسی کیس جیل میں ہے اور بعد توڑ پھوڑ ہوئی اس کو درج کر دیا، اس کو مناؤ۔ تو وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں مذاکرات سے انکار نہیں کرتا، مجھے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور نئی نسل کا بہتر مستقبل کے لیے میں اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں مذاکرات کرنے ہیں تو پہل کریں۔ جو ہزاروں یاسمین راشد سمیت لاتعداد لوگ گرفتار کیے، انہیں بے گناہ لوگوں کو جھوٹے مقدمہ درج کیے، انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ایک ناظرین، یہ تو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا ذاتی انتقام کی وجہ سے۔ دوسرا، جو آپ نے عدلیہ پر حملہ کر کے انصاف کے دروازے بند کیے، فوری طور پر 26ویں ترمیم واپس لی جائے۔ تیسرا اور آخری جو پورے 24 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ 28
8 फरवरी को जो इलेक्शन के नताइज थे जिसमें तरीके इंसाफ वाज़ह तौर पर जीती थी, वो मैंडेट वापस किया जाए। अगर हुकूमत की नेक नीयत है, चोरी का माल है, चोरी के माल में आपने इतनी मौजें कर ली, इस दौरान अपने मुकदमा अरबों खरबों रुपए के ख़त्म कर लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुकूमत ने नून लीग और पीपल पार्टी अरबों रुपए भेज दिए। तो अब ये मुतालबत मान जाए। अब ये अवाम जो सड़कों पर आ चुकी है, जिस तरह जिस शहर में पाकिस्तान में बात करो, अवाम का जमे गफीर है। अवाम हर रुकावट, कंटेनर की बड़ी बड़ी दीवारें रेंगते हुए आगे निकलते जा रहे हैं और हुकूमत पसपाई इख्तियार कर चुकी है। नहायत अहम जिम्मेदार के मुताबिक 3 जिले के पुलिस अफसरान ने कहा कि हमें माओं बहनें बच्चों को अगवा करने पर मजबूर ना किया जाए, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन चंद अफसरान ने बेज़मीरी की इंतहा कर दी। नाज़रीन, 3 खबरें ऐसे आई हैं कि कोई लोग अपनी फैमिली के लोगों को अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, रास्ता ना मिलने से खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम ना अल्लाह करे, 1-2 लोग दम भी तोड़ चुके हैं। ये कत्ल भी हुक्मरानों के सर जाएगा। एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस हुकूमत ने तो कत्लो गारत के बाजार गर्म किए हुए हैं। बुग़्ज़े इमरान खान में इन्होंने आइन तोड़ा, 90 दिन में इलेक्शन ना कराने का KPK और पंजाब, फिर वफाक में इलेक्शन ना कराने का 90 दिन में आइन तोड़ा। उसी पर एहतजाज करने ने कहा था ये मुल्क बेआइन और बेकानून है। अब इमरान खान की इस कॉल पर आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 27 ममालिक में अमेरिका, यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह एहतजाज हो रहा है और हर जगह पाकिस्तान के मीडिया के अलावा तमाम मीडिया कह रहा है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। यहाँ तक कि मरी जाने वाला रोड जहाँ कभी सुनसान नहीं होता, हज़ारों लाखों सयाह वहाँ जाते थे जहाँ ज़ेरे मुबादला आता था, बाड़ियाँ चौक मरी जाने वाली रोड को बंद कर दिया गया और साथ में फुटपाथ भी उखाड़ दिया गया है ताकि लोग मोटरसाइकिल पे भी ना जा सके। नाज़रीन, गाड़ियाँ बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया गया। लेकिन अवाम की हिम्मत फिर भी ज़्यादा जवां है, आगे बढ़ने का अज़म जवां है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के काफले में, KP में आने वाले काफले में, जिसमें कहा जा रहा है हज़ार खां गाड़ियाँ हैं, लाखों लोग हैं, वो 2 दिन तक नहीं पहुँचेगा। क्या अब हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर या पंजाब के एक शहर को दूसरे शहर से 8-8 दिन तक कंटेनर लगा के रास्ता बंद करेगी? ताजर भी एहतजाज कर रहे हैं, होटल इंतजामिया, गेस्ट हाउस भी एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने एक जुल्म ये किया कि इस्लामाबाद में हॉस्टल खाली करवा लिए गए और ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। स्टूडेंट सख्त परेशानी है, उनके घर वाले परेशान हैं, उधर से कोई कन्वेंस नहीं चल रही, इस्लामाबाद कोई जा नहीं जा रहा, पिंडी कोई जा नहीं जा रहा, गली कूचों में कंटेनर लगाकर इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। लेकिन कई फैमिलियाँ डी चौक पहुँचने में कामयाब हो गई। लाहौर के हर शहरा पर हर रुकावट को, हर मुश्किल को तोड़कर तरीके इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तानी अवाम का एक ही नारा है कि 24 नवंबर आज़ादी, जैसे 14 अगस्त 1947 था आज़ादी का दिन, इस तरह सियासी माफिया से आज़ादी के लिए 24 नवंबर कामयाबी का दिन है। इमरान खान जेल में रहकर भी हुकूमत को एक ही गेंद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, MQM और उनके हमायती सबको एक ही गेंद पे क्लीन बोर्ड कर चुके हैं। अब पैर की उंगली खड़ी हो चुकी है। अब बेशरम विकेटों पे खड़े हैं कि हमने हुकूमत नहीं छोड़नी। हुकूमत तो आपको छोड़ना होगी। अदालतों के हकामात भी आ गए हैं। इमरान खान की गवाही अदालतें देने लग पड़ी हैं कि झूठे मुकदमात है। 29 नवंबर को इमरान खान का जो 9 मई के मुकदमात है, हाई कोर्ट में भी केस लग गया है, उसमें भी जमानत हो जाएगी। पिंडी वाला झूठा मुकदमा भी जमानत के अप्लाई कर दिया गया है। तो इसका मतलब है इमरान खान की रिहाई के इम्कानात रोशन है। लेकिन कहा जा रहा है 23 और 24 नवंबर की दरमियानी शब हुक्मरानों ने अपने मौसनों से, जिन्हें हुकूमत मुसल्लत किया, कहा है कि हमें चंद महीने ले दें, हमें फौरी तौर पर घर ना भेजें। लेकिन बानी PTI ने आखिरी पैगाम
जो तरीके था और पाकिस्तानी अवाम को भेजा, उन्होंने कहा आपने अब ये फाइनल कॉल है, हमने उस वक्त वापस जाना है जब 26वीं तरमीम ख़त्म होगी, तमाम बेगुनाह रिहा होंगे, चोरी का मैंडेट वापस होगा, यानी कि इस हुकूमत का खात्मा होगा और जिसे आपने इलेक्शन में मुंतखब किया वही आएगा। नाज़रीन, PTI ने बड़ी हिकमत अमली बनाई है। उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने हज़ारों कंटेनर लगा के बंद कर दिया है पूरे पंजाब को और इस्लामाबाद को। जब तक अब कंटेनर नहीं खड़े, हम जहाँ हैं वहाँ रुक कर इंतज़ार करेंगे। अगर 10 दिन ये कंटेनर बंद करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर 2 आ चुके हैं और वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। बेहतर ये है कि नाज़रीन, ये हुकूमत जितनी देर रहेगी ये स्मेल छोड़ रही है, इससे निजात डाली जाए ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आया जा सके। अड्डे, पेट्रोल पंप बंद, चाय खाने के होटल बंद। जो लोग दीगर शहरों से काफिले के लिए आए हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। दर्जनों लोगों ने कहा है हमारी मुश्किलात अगर मुल्क की आज़ादी की सूरत में खबर बनकर आए तो हमें अपनी जान भी जाना है। अडयाला जेल में बंद इमरान खान ने आखिरी पैगाम फिर दिया। उन्होंने कहा मैं मरते दम तक जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करूँगा क्योंकि ये चोरी के मैंडेट से आई है। जेलम और चनाब के पुल पर भी गुमसान की जंग है। इस्लामाबाद आने वाले रास्तों पर भी गुमसान का मैदान लग चुका है। पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत का बगावत का अलम लिए मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कहा है हमें आज़ादी चाहिए, हमें चोरी के मैंडेट वाली हुक्मरान नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि हुक्मरान के कुछ लोगों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है। अगर हालात ऐसे बनते हैं कि हुकूमतों को इस्तीफा देना पड़ता है, अगर देना पड़ता है, मैंने लफ्ज़ कहा है, तो फिर कुछ लीडर पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे और 12 के करीब सरकारी अफसर ब्यूरोक्रेसी पुलिस अफसरान ने अपने वीज़े भी तैयार कर लिए हैं क्योंकि वो समझते हैं अगर मेरिट पर इमरान खान को मैंडेट चोरी का वापस मिलता है और नए इलेक्शन होते हैं तो उन्हें अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा। इमरान खान ने कहा किसी से भी बदला नहीं लेंगे, कोई सियासी कैदी नहीं बनाएंगे, लेकिन जिन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, फंडामेंटल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की, उन्हें अपना एहतसाब देना होगा। साफ शबाब एहतसाब इनके लिए जेलों के दरवाजे हुक्मरानों के लिए खोल देगा। लगता है एक देर का दरवाज़ा खुलेगा और अडयाला जेल से बानी इमरान खान रिहा हो जाएंगे और कई जेलों के दरवाज़ा खोलेंगे जिसमें मौजूदा हुक्मरानों के वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा, आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, अपने अख्तियार से तजावज़ करवा, वो उन्हीं जेलों के दरवाज़ों से जेलों में जाकर अपना एहतसाब देंगे। लेकिन हाँ, इंतकाम नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। 24 नवंबर को शुरू होने वाली तहरीक इस हुकूमत के खात्मे की नवीद सुना रही है। अदालतें क्या रोल अदा करती हैं, अब उनकी तरफ देखना है। नाज़रीन, याद रखें कि पाकिस्तान में एक तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी की उम्मीद पैदा हो रही है। हमें यकीन है कि ये आज़ादी का सूरज तुलू होगा और जुल्म का रात अंधेरी गुरूब होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।